Okay, right. Okay, so today we need to understand the cause and effect of Genesis chapter 3. आज हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब से की वजह और असर के बारे में जानेंगे Only then you can understand gospel. ताकि आप खुदा के कलाम को समझ सकें। You know, in this world there are many wrong theologies, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से गलत अकायद हैं, like prosperity, healing, all the stuff. खुशहाली और सेहतयाबी। If you go to this Latin America country, they always focus on social health. अगर आप लतीनी अमेरिका जाएं तो आप वहाँ पर सोशलिज्म देखेंगे। So the reason is because they don't understand problem. उसकी वजह यह है कि हम अपने बुनियादी मसले को नहीं जानते हैं। If you really understand problem, you will understand why we need only Christ. अगर आप इस मसले को जान जाएं तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु अल मसीह की हमें क्यों ज़रूरत है। And also now in Pakistan life is difficult, so many people go to church for material things. अगरचे पाकिस्तान में जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग चर्च में बेनाम जाते हैं। Maybe like a medical system, education not developed, so many people go for healing, for prosperity. क्योंकि पाकिस्तान में तालीमी और सेहत का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है, इसीलिए लोग चर्च का रुख सिर्फ सेहत पाने के लिए करते हैं। That's why people think if they have better education, more money, problem will be solved. ताकि लोग समझते हैं कि चर्च जाने से हमें बहुत ज़्यादा दौलत और तंदुरुस्ती मिलेगी। But it is not like that. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। There is a such science, sociology. ये सिर्फ यानी मजहबी तालीम का नतीजा है। There are a lot of books about sociology studies. क्योंकि जो समाज से मुतल्लक बहुत सी किताबें ऐसी लिखी गई हैं। And it sounds strange, but the high level of suicide, it is especially in developed countries. जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें खुदकुशी करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। And a great number of alcohol addiction in a developed country. और तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग बहुत सी शराब पीते हैं। So economical development, political development is not a solution. सियासी तरक्की और मुआशी तरक्की इस मसले का हल नहीं है। And you need also learn from Korea, South Korea. आपको साउथ कोरिया के बारे में जानना चाहिए। 200 years ago, missionaries came here. 200 साल पहले जो मिशनरी थे वो यहाँ पर आए। And here was nothing, no school, no hospitals, nothing. यहाँ कुछ भी ना था, ना स्कूल था, ना अस्पताल था। People very uneducated. लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ थे। People died very early because of physical disease. लोग जिस्मानी बीमारियों की वजह से जवानी में ही फौत हो जाते थे। And then Korean missionaries, they established 3 things. They built up 3 things. तब जो मिशनरी आए थे उन्होंने 3 चीज़ें कोरिया में कायम की। First, they built up schools to teach people. उन्होंने स्कूल कायम किए ताकि वो लोगों को पढ़ा सकें। And because there were a lot of diseases, they built hospitals. बहुत ज़्यादा बीमारियां होने की वजह से उन्होंने अस्पताल तमीर किए। But the problem was Korean people didn't know God. That's why they built churches. जो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला था क्योंकि लोग कोरिया के लोग खुदा को नहीं जानते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर चर्च तमीर करने पड़े। And then slowly gospel start to spread in Korea. और फिर आस्ता आस्ता खुदा का कलाम कोरिया में फैलने लगा। And because of gospel, God develops this country. और खुदा का कलाम कोरिया में फैलने की वजह से लोग खुदा को जानने लगे। But look at the country where we have good schools, good hospitals, but no churches. ये ऐसा मुल्क, वो कौन सा मुल्क होगा जहाँ पर स्कूल हों, अस्पताल हों, लेकिन खुदा का घर ना हो? Like America, Europe, the church are decreasing, almost disappearing. अमेरिका और यूरोप में चर्च आस्ता आस्ता घटने लगे। That's why I have a lot of mental disease, क्योंकि ये ज़हनी बीमारियां थीं। Last week, I talked to one Ukrainian woman. She lives in Germany right now.
पिछले हफ्ते मैंने एक यूक्रेन की औरत का जिक्र किया था जो जर्मनी में रहती थी। So she went as a refugee and now she's living there. वहाँ वो महाजर के तौर पर गई थी और वहाँ रह रही थी। And she went to hospital and she met one German couple. वो अस्पताल गई और वहाँ पर वो एक जर्मन जोड़े से मिली। Both are Christians. So husband brought his wife, but wife mentally sick. वो दोनों क्रिश्चियन थे, लेकिन जो आदमी था वो अपनी औरत को अस्पताल लेके आया था क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बीमार थी। And the doctor, he was kind of looking down at these Christians. He said, "You believe in God? Why your wife mentally sick?" जब डॉक्टर ने उस औरत को देखा तो उसने कहा कि आप लोग तो क्रिश्चियन हो, आप इस बीमारी में क्यों मुब्तला हो? So now in Europe, many Christians, they are receiving treatment in mental hospital. यूरोप में बहुत ज़्यादा जो क्रिश्चियन है वो ज़हनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। How is it possible? ये कैसे मुमकिन है? So when gospel disappears, all disaster comes. क्योंकि जब खुदा का कलाम ख़त्म हो जाता है तो फिर बीमारियां आ जाती हैं। Even if you have physical, material prosperity, but no gospel, you cannot be happy. अगर आपके पास जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा दौलत भी हो लेकिन खुदा का कलाम नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। That's why you need to understand Jesus' gospel. इसलिए आपको यीशु मसीह के कलाम के बारे में जानना ज़रूरी है। For example, we preach like that, believe in Jesus Christ like that. मिसाल के तौर पर हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, But Jesus didn't preach like that. तो यीशु ने ऐसा कभी भी प्रीच नहीं किया था। Jesus' gospel, it was a gospel about kingdom of God. यीशु का जो कलाम था वो खुदा की बादशाह के बारे में था। So Jesus, he was explaining kingdom of God. He was inviting people to the kingdom of God. यीशु ने खुदा की बादशाही के बारे में हमें बताया और हमें खुदावंद की बादशाह की तरफ बुलाया। And Jesus, he was talking a lot about eternal life. और यीशु ने बहुत ज़्यादा दायमी जिंदगी के बारे में बातें की। Amen. In Greek language, we call this zoe. और ग्रीकी ज़बान में हम इसे जोया कहते हैं। So in Greek language, we have two lives. Pushike is physical life, and zoe spiritual life. जो यूनानी ज़बान में उसमें दो तरह की जिंदगी है, पुष्य यानी जिस्मानी लाइफ और जोया रूहानी लाइफ। So zoe, it's not physically life; it's God's life, divine life. जो जोया है वो जिस्मानी जिंदगी नहीं है बल्कि ये एक मुकद्दस जिंदगी है जो खुदा की तरफ से मिलती है। And only when you have zoe, only then you can enter to the kingdom of God. Jesus और said अगर that. हमारे पास जोया की जिंदगी है तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। And you need to understand eternal life. और आपको दायमी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है। Many Christians, they think, I believe in Jesus, I live how I want, one day I die, go to heaven. बहुत से मसीह लोग ये समझते हैं कि मेरा यीशु मसीह पर ईमान है, एक दिन मैं मरूंगा और खुदा की बादशाही में चला जाऊंगा। But having eternal life means absolutely nothing, absolutely different. लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है वो इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। John 73, it means to know God and His Son. This means eternal life. यूहन्ना की किताब उसका 17 बाब 3 में देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि कलाम में लिखा है कि अगर आप बेटे को जानते हो तो आप खुदा को भी जानते हो। Not just live how I want, I die, go to heaven. No. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मरूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। Here on earth, we need always get closer to God, know each other better and better. इसलिए जरूरी है कि मरने से पहले हमें खुदा के जमीन पर खुदा के नजदीक जाना चाहिए। And also, if you look 1 John 1:3, it says to have a fellowship. To have fellowship. This means eternal life. Have a fellowship with God Father and His Son. Have fellowship. और यूहन्ना की किताब उसका 1 बाब 3 में अगर हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें बाप और बेटे से रफाकत रखने की जरूरत है ताकि हम दायमी जिंदगी पाएं। For example, our family, our friends, we have fellowship, right? क्योंकि हमारे खानदान और हमारे दोस्तों से हमारी रफाकत होती है। If you don't talk to your wife for 1 year, maybe your relationship will get far from each other, right? और अगर आप 1 साल तक अपनी बीवी से गुफ्तगू ना करें तो हो सकता है आपका जो तल्लक है वो उससे खत्म हो जाए। So to have eternal life means always know better God and His Son,
and have fellowship with him. Have fellowship. तो इससे मुराद ये है कि आपको खुदा और उसके बेटे से मुसलसल रफाकत रखनी चाहिए। If we, four of us, just sit silent here, can we have fellowship? और अगर हम में से एक बंदा खामोश बैठा रहे तो हम किस तरह आपस में रफाकत रखेंगे? We can have fellowship when we have words, right? We talk. हमें एक दूसरे से रफाकत रखनी और एक दूसरे से बात करनी चाहिए। Let's say for us to have fellowship with God, to listen His word, only one way. खुदा से रफाकत रखने का मतलब है कि हमें खुदा का कलाम सुनना चाहिए। And also, eternal life means First John 2:24-25. It's reside in God Father and His Son. Be inside. Reside. Be inside. यूहन्ना की किताब उसका 1 John 2:24-25. 24 और 25 दो बाब उसकी 24 और 25 आयत में हमें बताया गया है कि हमें खुदा के साथ पहलू बा पहलू रहना चाहिए। So be inside, उसके साथ, not outside. Inside. ना के बाहर। So this is eternal life. यही दायमी जिंदगी है। Always know each other better. एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानना चाहिए। Through words have a fellowship always. अल्फाज के जरिए एक दूसरे के साथ दोस्ती रखनी चाहिए And spiritually be inside of God, Father and His Son. और रूहानी तौर पर खुदा बाप और खुदा बेटे के साथ रहना चाहिए। If you have this life of faith, you will be the best. You will have the best life of faith. और अगर इन चीजों पर आपका ईमान होगा तो आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होगी। But many people go to church, but actually they don't know God. Realistically. अगरचे बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खुदा को नहीं जानते हैं। And they don't receive training. They don't know words. No fellowship with God. वो कभी भी तरबियत हासिल नहीं करते और उनका खुदा का कोई भी राब्ता नहीं होता। If you look at their life, it looks like they don't know God. इसका ये मतलब हुआ कि वो खुदा को नहीं जानते हैं। That's why we need properly enjoy gospel. इसीलिए हमें खुदा के कलाम को मुकम्मल तौर पर जानना चाहिए। And Satan, he steals this from us. और जो शैतान है वो हमसे ये तमाम चीजें चुराता है ताकि हम खुदा से रकाबत ना रख सकें। That's why many people, they don't know God, they have no fellowship, their life outside of God. यही वजह है कि जो लोग खुदा को नहीं जानते और उससे दोस्ती नहीं रखते वो खुदा के साथ नहीं रहते। And you need to understand what will happen if you don't have this. We need to understand. तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप खुदा के साथ दोस्ती नहीं रखते तो आपके साथ क्या होगा? It is suffering and death. आप बीमारी में मुब्तला होंगे और मर जाएंगे। For example, when you take fish out of water, it doesn't die right away. मिसाल के तौर पर अगर आप मछली को पानी से निकालेंगे तो वो उसी वक्त नहीं मरेगी बल्कि वो आस्ता आस्ता तड़प कर मर जाएगी। You know, first fish is shaking. आप मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मछली पहले तड़पेगी, It's a suffering. फिर वो आस्ता आस्ता मुब्तला हो जाएगी And then it dies. और फिर वो मरेगी। The same, if people out of God, first they will have suffering. इसका मतलब है कि अगर लोग खुदा को नहीं जानेंगे तो वो बीमारी में मुब्तला होंगे। Mental suffering, physical suffering. यानी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां उन पर आएंगी And then they die. और फिर वो मरेंगे। But it was not in the beginning like that. लेकिन इब्तिदा में ऐसा कुछ भी ना था। How was in the beginning? बिगिनिंग में ऐसा क्या था? शुरू में ऐसा क्या था? Genesis 1:1. In the beginning, God He created heaven and earth. पैदाइश की किताब उसका एक बाप उसकी एक आयत में देखते हैं कि खुदा ताला ने पहले जमीन और आसमान को पैदा किया। So when we say heaven, it is above world, above. और जो जन्नत थी वो आसमानों पर बनाई गई। Earth is below world. और जो जमीन थी वो नीचे बनाई गई। Heaven means above all creatures, above. जन्नत का मतलब है कि वो तमाम मखलूकात के ऊपर बनाई गई। Heaven means inside of creatures, inside of creatures. और अर्थ से जमीन से मुराद वो जमीन जो इंसान के लिए जमीन पर बनाई गई। So, and you know,
Heaven is unlimited world, unlimited. जो जन्नत थी वो गैर महदूद जगह थी, Earth is a limited world. और जो जमीन थी वो महदूद थी। On heavens there is no death because here we have an eternal life. और जन्नत में मौत नहीं थी, वहां पर दायमी जिंदगी थी। But on earth, as time goes by, everything comes to death. लेकिन आप जानते हैं कि जमीन पर हर चीज को मौत आती है। So, triune God, He is in heaven right now. तो आओ हम इस स्केच के जरिए देखते हैं। We say God Father and His Son, हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा बाप और उसका बेटा है, and also Holy Spirit. और खुदा का पाक रूह है। And this God, He created man here on earth. और खुदा ने जिस आदमी को बनाया था वो जमीन पर रहता था। If you look Genesis 1:27, 26:27, God created man in the image of God. और अगर आप पैदाइश की किताब उसका एक बाब उसकी 26-27 आयत को देखें तो खुदा ने उसमें साफ लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शिबा पर बनाया। All creatures were created by God's word. क्योंकि दुनिया की तमाम मखलूक खुदा के मुंह के कलाम से पैदा हुई, But only man was created in a special way. लेकिन खुदा ने इंसान को खास तरीके से बनाया। In Genesis 2:7, first God created man's body. पैदाइश की किताब उसका 2 बाब 7 में लिखा है कि खुदा ने पहले इंसान के जिस्म को बनाया, But there was no life inside, लेकिन उसमें जिंदगी ना थी, just a body. वो सिर्फ एक जिस्म था। Have you seen dead person like a क्या corpse? आपने कभी किसी मुर्दा शख्स को देखा है? Just a body. वो सीधा पड़ा होता है। Then God He breathed a breath of life. और तब खुदा ने उसके नथों में जिंदगी का दम फूका। We say God breathed His spirit in man. आप उसे कह सकते हैं कि खुदा ने आदमी को रूह की नेमत से नवाजा, And man became living soul. और इंसान जीती जाती जान बना। That's why First Thessalonians 5:23 says man has a body, spirit and soul. इसलिए पहला थस्सलुनीकियों उसकी 5:23 में देखते हैं कि आदमी के पास जिस्म रूह थी। Why God created man like that? आज खुदा ने इंसान को ऐसा क्यों पैदा किया था? Animals, they also have body and soul also, आप जानते हैं कि जो जानवर हैं वो जिस्म और रूह रखते हैं, but animals have no spirit. लेकिन उनमें जो है वो रूह नहीं है। Animals don't need God, don't need worship. उन्हें खुदा की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। But because man he has a spirit, he can know God and have a fellowship with God. लेकिन इंसान में रूह थी और उसका और खुदा का जिस्मानी यानी रूहानी रिश्ता था। And you know what soul? Soul is like a knowledge, emotion, so we can have a fellowship with God, understand God. तो यानी सौल से क्या मुराद है? इससे जज्बात और समझना, लेकिन इसके जरिए ही हम खुदा से तलक़ात बना सकते हैं। And God created man, even man lives on earth. God created man can have a fellowship with God, fellowship. जब खुदा ने इंसान को ज़मीन पर बनाया तो इंसान की खुदा के साथ दोस्ती थी। Man, he can rely on God, rely on. आदमी जो था वो खुदा पर भरोसा करता था, And man, he need to obey God's word. और आदमी के लिए ज़रूरी था कि वो खुदा की फरमाबरदारी करे। And man, he need to serve God. और आदमी के लिए ज़रूरी था कि वो खुदा की खिदमत करे। Then God, he will play a role of God in this relationship. Role of God. और इसमें इस दोस्ती में यही खुदा आदमी का और खुदा का रोल था। God will give man eternal life कि खुदा ने इंसान को दायमी जिंदगी अता की and all spiritual blessings. और उसे रूहानी बरकत से नवाजा। Why? Because on this earth there are many limitations. So man needs blessings to overcome limitations. क्योंकि ये जो दुनिया थी ये महदूद थी, इसलिए खुदा ने इंसान को बरकत दी ताकि वो लामहदूद हो सके। God's love, God's peace, God's wisdom. खुदा की मोहब्बत, खुदा की तरफ से सेहत और खुदा की तरफ से रहम। And this relationship was a relationship of love. और यही जो रिश्ता था ये मोहब्बत का रिश्ता था। And for man to enjoy these blessings, God gave man commandment. और खुदा जो आदमी था वो इन बरकत से लुत्फ़ अंदोज़ होता था और खुदा ने आदमी से एक अहद बांधा। Genesis 2:17.
Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. पैदाइश की किताब उसका 27 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना। It was not because that tree was poison. No. इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो दरख्त था वो जहरीला था। This tree, this commandment symbolizes correct relationship with God. ये हुक्मनामा था ताकि आदमी और खुदा के तल्लक कायम रह सकें। It means if you obey God's word, you can always live in the Garden of Eden. इसका मतलब है कि अगर आप खुदा के लफ्ज़ों का पास रखते हैं तो आप ये रूहानी बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। And you can always enjoy eternal life, spiritual blessings. और आप दायमी ज़िंदगी से और रूहानी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। So this is a principle of creation. और यही पैदाइश का एक असूल था। And principle of creation is a principle of life. और जो पैदाइश का असूल था वही असूल ज़िंदगी था। So originally man, he was living with God, he had a fellowship with God, he enjoyed God's blessings. और जो पहला जो आदमी था उसकी खुदा से दोस्ती थी, वो बरकत से लुत्फ़अंदोज़ होता था और खुदा के साथ यानी खुदा के साथ फरमाबरदारी करता था। But now we don't live like that. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। The reason is Genesis chapter 3 problem. इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो पैदाइश की किताब उसका 3 बाब की जो असल मसला है वो है। So you know what happened here, right? क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था? But the thing is, many people they focus on man's action. बहुत से लोग सिर्फ आदमियों के कामों की तरफ देखते हैं। Adam, he disobeyed God, he ate from the tree, like that. आदम ने खुदा की नाफरमानी की, उसने दरख्त का फल खाया। If you also look like that, you will always criticize people. अगर आप इस तरह देखेंगे तो आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाएंगे। For example, my father, he was alcohol addicted मिसाल के person. तौर पर मेरा बाप जो था वो शराब का आदी था And I saw all problems in our family because of my father. और मैं ये समझता था कि ये जो तमाम मसाइल मेरे ख़ानदान में हैं ये सिर्फ मेरे बाप की वजह से है। Then my aunt, she was selling drugs in my house. और आखिर में मेरे बाप ने नशे की लत में अपना घर बेच दिया। I saw all problems because of my aunt. और मैं यही समझता था कि यही मेरी मुश्किल की आखिर है। Even I was a little, I cannot spoke about it, but deeply in my heart, I criticized them. हत्ता कि मैं छोटा था और मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन मैं दिल में ही इन चीज़ों के बारे में तनकीद करता था। But when I knew about gospel, I stopped criticizing people. और जब मैंने खुदा के कलाम को जाना तो मैंने लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। Why? Before that, there was another problem. क्योंकि जो इंसानी मसला है वो दूसरा मसला है। Man, he didn't want to come out from God. He didn't want. क्योंकि आदमी खुदा से बाहर नहीं जाना चाहता था। So there is someone who caused Genesis chapter 3 problem. तो हम पैदाइश की किताब उसकी 3 बाब में देखते हैं कि इसका असल वजह क्या थी। Before Genesis chapter 3 problem, if you look Romans 5:13, it says sin was before law. Sin was before commandment. Before commandment. अगर हम रोमियों की किताब उसकी 5:13 आयत में पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि आदमी से पहले ही गुनाह मौजूद था। So before Genesis chapter problem happened, Satan, he sinned before. तो किताब की पैदाइश में इस गुनाह से पहले हम देखते हैं कि गुनाह जो है वो शैतान की सूरत में ज़मीन पर आया। If you look Ezekiel 28 chapter 28 verse 13, Bible says there was 3 groups of angels in heaven. अगर हम हिजकिय्याह की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 आयत देखें तो हम कलाम में लिखा है कि जो फरिश्तों के 3 ग्रुप जन्नत में थे। First group, they are praising God always. पहला ग्रुप जो खुदा की इबादत करता था। Second group, they are messenger. They deliver what God says. और जो दूसरे थे वो पैगाम रसानी का काम करते थे। And third group is God's army. और जो तीसरा ग्रुप था वो खुदा की फौज थी। So angel who was in charge of praise, his name was Lucifer. और जो दुआ का सरदार था वो लूसीफर था। And in Isaiah 14:12 to 15, this Lucifer,
he became arrogant. He didn't want to praise God और anymore. खुदा के कलाम में लिखा है ये जो लूसीफर है ये गुस्ताख हो गया, He wanted to be higher than God. ये अपने आप को खुदा से पावरफुल बनाना चाहता था So he rebelled against God. और उसने खुदा के खिलाफ बगावत की। Can creature be higher than creator? क्या कभी मखलूक खुदा से ऊपर हो सकती है? God also created angels. They are Christian. खुदा Creation. ने खुदा ने फरिश्तों को पैदा किया And in heavens there is no democracy. There is only one ruler. Is God. और जो जन्नत है उसमें कोई भी जमहूरियत नहीं बल्कि उसमें खुदा की ही हुक्मरानी है। So that's why, of course, it was impossible. That's why Revelation 12:7-9. There was a war in heaven. War. और फिर हम देखते हैं मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 7 और 9 आयत कि फिर खुदा के आसमानों पर लड़ाई हुई। Michael, who was in charge of God's army, he was fighting against Lucifer. मैकाइल जो खुदा की फौज का सरबराह है वो लूसीफर के खिलाफ लड़ा And of course, Lucifer, he lost battle. और लूसीफर को जंग हारना पड़ी। And Bible says he was sent down to earth. और खुदा का कलाम हमें बताता है फिर शैतान उसके फरिश्तों को जमीन पर फेंक दिया गया। That's why before God even created a man, if you look Genesis 1-2, already there was a darkness, void and chaos. और जब और पैदाइश की किताब उसकी 1 बाब 2 आयत में देखते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले ही जमीन पर तारीखी छा गई। So we see before Genesis chapter 3, there was a Satan's fall. तो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की आयत को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि शैतान को जमीन पर गिरा दिया गया। And then this Satan, he entered to snake, you know. और फिर ये जो शैतान था वो साम में दाखिल हुआ। So in Genesis chapter 3, we see a snake. और किताब पैदाइश की किताब उसकी 3 बाब में हम साम के बारे में जानते हैं। Snake is not Satan, snake is snake. सांप जो है वो शैतान नहीं था बल्कि वो सांप ही था। But Satan, he is a spirit, so he entered to the snake and he spoke to man. बल्कि शैतान एक रूह था वो सांप में दाखिल हुआ और उसने आदमी को बहकाया। And now Satan, he used force of sin. और अब शैतान ने गुनाह की ताकत को इस्तेमाल किया। What is the force of sin? गुनाह की ताकत से क्या मुराद है? Disbelief in God, disbelief. इससे मुराद ये है कि इंसान ने खुदा पर इत्मीनान ना किया, Disobey, उसने उसकी नाफरमानी की and rebellion against God. और खुदा के खिलाफ बगावत की। So Satan, when Satan attacks, we cannot stand against him. We cannot. और जब शैतान हम पर हमला करता है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। That's why Satan, he easily deceived Adam and Eve. यही वजह है कि शैतान ने आदम और हवा को धोखा दिया And they committed actual sin. They ate from tree of knowledge of good and evil. और उसने जो बुनियादी गुनाह था वो किया और उसने नेको बद की तरफ से फल लिया और उसको खा लिया। And God, he said, if you eat, you will surely die. और खुदा ने कहा जिस दिन तुमने इस फल को खाया तो यकीनी तौर पर मर जाएगा। And as a result, they were separated from God. Separation. और इस नतीजे के तौर पर वो खुदा से रूहानी तौर पर जुदा हो गए। What is separation? जुदाई से क्या मुराद है? Right away, death came, death. इससे मुराद ये है कि खुदा से रूहानी तौर पर मुनक़ता होने के बाद इंसान पर मौत आई। First, Amen. spiritual death. पहली जो मौत थी वो रूहानी थी। Spiritual death means disconnection from spiritual world. रूहानी मौत से मुराद ये है कि हमारा रूहानी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। And then physical death came. और फिर जिस्मानी मौत इंसान पर आई। Originally, man's body was not immortal. No. जो इंसानी जिस्म है वो दायमी ना था। But we had no death inside of our body. No death. हमारा जो जिस्म है उसमें मौत ना थी। But after sin, even physical death came. बल्कि गुनाह के बाद हमारी जिस्मानी मौत वाक़या हुई। And after that, eternal death. It's going to hell. और उसके बाद यानी दायमी मौत यानी हम दोज़ख में चले जाते हैं। So before man, he was living on earth, have a fellowship with God, enjoy God's blessings. और जब इंसान का खुदा से तल्लुक़ था उससे दोस्ती थी वो इन बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता था।
But now situation changed totally. और फिर जो हालात थे वो बिल्कुल ही तब्दील हो गए। Now man became disconnected from God and spiritual world. अब इंसान जो था वो खुदा और रूहानी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका था। And from that moment all suffering began. और यहाँ से ही तमाम बीमारियों और परेशानियों की इब्तिदा हुई। For example, when I was maybe 13, 14 years old, even I was not smart, but I thought, why my family is always suffering? I didn't know. जब मैं 13-14 साल का था तो मैं ये सोचता था, मैं ज़्यादा होशियार नहीं था, मैं ये सोचता था कि मेरे ख़ानदान पर ये जो मुश्किलात है ये क्यों आई हैं। When my parents they went outside, they had a nice time, party, disco, like that. जब मेरे वालिदैन बाहर जाते थे तो वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते थे क्योंकि वो पार्टी करते थे, नाचते गाते थे। Actually, I grew up in disco club. अगरचे मैं भी उस डिस्को क्लब में बड़ा पड़ा। My parents they had a party till very night, but they didn't want to go home. और मेरे जो वालिदैन थे वो नाच पार्टी करते और वो घर आना नहीं चाहते थे। So they used chairs, they made a bed, and I was sleeping in disco club. वो कुर्सी को आगे खींचते और वहाँ पर ही सो जाते। But next day, life was totally different. और अगले दिन जो थी उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती। Most of my friends they were unhappy. और बहुत से जो मेरे दोस्त थे वो इस बात से नाखुश थे। Because of this unhappiness, my father he started taking drugs. और इस नाखुशी की वजह से ही मेरे बाप ने नशा लेने की आदत को बनाया। So life being separated from God, it's a torture, it's a suffering. और इससे मुराद ये है कि जो जिंदगी खुदा के बगैर है वो तशद्दुद है, वो बीमारियों में मुब्तला है। Have you seen child who was taken away from his parents? Cry. आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपने वालिदैन से जुदा हो गया होगा, वो रोता है। And you need to understand life of man separated from God. और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि आदमी की ज़िंदगी का क्या हुआ जब वो खुदा से जुदा हो गया। This world became earthly kingdom. Earthly kingdom. ये जो दुनिया थी ये गिराई हुई दुनिया हो गई। As Jesus said, people only know physical things on this earth. और यीशु ने कहा कि लोग जिस्मानी ज़रूरियात के बारे में सिर्फ जानते हैं। What to eat, what to wear, this is the biggest concern. कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यही उनका बहुत बड़ा मसला है। If people think, oh, I have money, I have good house, this is success. अगर ये लोग सोचते हैं कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास बड़ा घर है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। People think, if I have a lot of physical stuff, I will be happy. लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा जिस्मानी सहूलतें हैं तो मैं कामयाब हूँ। But what people don't know in this world is लेकिन जो लोग हैं वो इस दुनिया के बारे में नहीं जानते that this world is a Satan's kingdom. Satan's kingdom. ये जो दुनिया है ये शैतान की बादशाहत है। Oh, really? Jesus said like that. यीशु ने ऐसा कहा था। John 16:11. Satan, he is a king of this earth, king. यूहन्ना की किताब उसका 16 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है कि जो शैतान है वो इस दुनिया का बादशाह है। 2 Corinthians 4:4. He is a god of this world, God. और दूसरा कार से 4 में हम देखते हैं कि ये खुदा की बनाई हुई दुनिया थी। And Satan, he ruled over people through the law of sin and death. और शैतान जो है वो इस दुनिया पर गुनाह और मौत से लोगों पर हुक्मरानी करता है। It means Satan made all people be sinful and have spiritual death. और इससे मुराद ये है कि शैतान ने तमाम लोगों को गुनाहगार और उन पर मौत को नाज़िल किया। That's why all people who are born here already they don't know nothing about God. इसीलिए जो भी लोग ज़मीन पर पैदा होते हैं वो खुदा को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते हैं। Never experience God. उनके पास खुदा से मिलने का कोई भी तजर्बा नहीं है। Always follow only physical वो material. हमेशा जिस्मानी चीज़ों के बारे में ही जानते हैं। But they don't know that Satan is reigning their life. उनको ये मालूम नहीं है कि शैतान उनकी ज़िंदगी पर हुक्मरानी कर रहा है। That's why we have 6 states of non-believers. 6 states of non-believers. यही वजह है कि 6 सल्तनतें गैर ईमानदार लोगों की हैं। Can you imagine? As soon as people are born, they are already children of the evil. आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो लोग पैदा होते हैं वो शैतान के बच्चे बन जाते हैं। And because they don't know God, but they have difficulties, they have to rely on something.
क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते हैं, वो दूसरों पर भरोसा करते हैं। That's why people, they created religion. इसीलिए लोग मजहबी तौर पर पैदा होते हैं। People created idols, a lot of idols. लोग बुतों को बनाते हैं। You know, every country has a old tradition religion, right? आप जानते हैं कि हर मुल्क का एक रवायत, हर मुल्क में एक रवायत होती है, Religion created by man. क्योंकि जो मजहब है वो इंसान ने बनाया है। So many hardships. People have to rely on something. इस बनाए हुए मजहब में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और लोग किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं। But actually, all religions, they are serving Satan, actually. और तमाम जो मज़हब हैं वो खुदा की पूजा, शैतान की पूजा करते हैं। And people who are separated from God, they have a physical and mental burden inside. और वो लोग जो खुदा से रूहानी तौर पर जुदा हो गए थे, वो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी में फंस गए। Jesus, he said, "Come to me, all you who are weary and burdened." यीशु ने लोगों से कहा, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। And Acts 8:4-8, people suffer from different diseases. और अमाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 4 से 8 में लिखा है कि लोग जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो गए। And these days we have uncurable diseases, a lot. और ये यानी You cannot treat this disease. ये इलाज बीमारियां थी। And also there is undiagnosed disease. Doctors don't और know what ऐसी is that. बीमारियां थी जिनका सुराख ना लगाया जा सके, Because Satan gives people physical diseases. क्योंकि शैतान ने इंसानों को जिस्मानी बीमारियां दी थी। And it's not the end. One day people will die and they will go और to hell. ये खात्मा ना था, बल्कि खात्मा ये था कि इंसान एक दिन मर जाता। So there was a parable about rich and poor guy. और यही गरीब और अमीर में मुमताज था। No matter how poor was difficult, rich how he had a good life, both died. इसका ये मतलब नहीं कि गरीब की ज़िंदगी में परेशानी थी और अमीर खुशहाली से जीता था, बल्कि इन दोनों को ही मरना पड़ता है। And there is a life after death. Life in heaven, life in hell. मरने के बाद दो तरह की ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी और दोज़ख की ज़िंदगी। So this is how all people live on earth right now. और यही वजह के लोग इस ज़मीन पर इसी तरह जिंदा रहते हैं। Pakistani, Ukrainian, Korean, all is the same. पाकिस्तानी, यूक्रेन, कोरियन तमाम लोगों को इस तरह ही कई हालात का सामना करना पड़ता है। But it's not the end. लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। Can you imagine? All this problem goes to children. आप किस तरह ये तसव्वुर करते हैं कि ये तमाम बीमारियां फिर बच्चों में चली जाती हैं? So children live the same way like parents. और फिर जो बच्चे हैं वो ठीक अपने वालिदैन की तरह ही रहते हैं। I also was living like that. मैं भी ठीक इसी तरह ही रहता था। My parents emphasized you have to study, go to university. और मेरे माँ बाप इस बात पर दबाव देते थे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। If you graduate university, you can have a good job. और अगर आपकी तालीम ख़त्म हो गई है तो आपको एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। If you have a good job, you can buy something, you can go travel, you can buy many things. और अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी तो आप अपने लिए ये चीज़ें खरीदोगे और आप दुनिया के सफ़र करोगे। But speaking honestly, the more I grew up, the more I became thirsty inside. और जब मैं बढ़ा तो मैंने अपने अंदर ही दिल में ही सोचा And I was not happy. कि मैं खुश नहीं हूँ। Actually, back days, I was able to speak jokes 30 minutes without stopping. जब बुरे दिन थे तो मैं 30 मिनट तक हंसी मजाक लोगों से कर सकता था। Wherever I go, people like me because I'm fun. I'm a funny guy. मैं लोगों में एक मजाकिया लड़के के तौर पर जाना चाहता था। But when I went home, I felt loneliness inside. और जब मैं अपने घर आता तो मैं तन्हाई को महसूस करता। So, all people live like that. Of course, it's unhappy life. तो तमाम लोग जो ज़मीन पर रहते हैं वो एक नाखुश ज़िंदगी गुजार रहे थे। So, no matter how people have education or physical stuff, material stuff, they will be unhappy. इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास जिस्मानी ज़रूरतें और आराइशें हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो रूहानी तौर पर नाखुश थे। And they cannot stop Satan, who is destroying them and their और life, their children. वो अपनी ज़िंदगी में शैतान को नहीं रोक पाए थे कि वो उनको और बच्चों को तबाह ना करे। That's why when Jesus, he started his ministry, first sermon was, repent, kingdom of God has come.
यही वजह है कि जब यीशु ने ज़मीन पर अपने कलाम की इब्तिदा की तो उसने ज़मीन पर पछता यानी शैतान के खिलाफ पछतावे की तालीम दी। Jesus said, Kingdom of God come. यीशु ने कहा कि खुदा की बादशाही आए। When disciples asked, how should we pray? He said, pray like that. May your kingdom come. जब यीशु ने अपने शिगिर्दों को दुआ के बारे में बताया तो उसने कहा कि तुम दुआ करो कि ऐ खुदा तेरी बादशाही ज़मीन पर आए। So Jesus, he was explaining about kingdom of God, which was not on earth. तो यीशु ने इस बात की वजाहत की कि ज़मीन पर खुदा की बादशाहत नहीं है। In Matthew 6:33, Jesus said, seek first kingdom of God and his righteousness. और पैदाइश की किताब उसकी 6 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम खुदा की बादशाही को तलाश करो, फिर दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। So what is the kingdom of God? खुदा की बादशाहत से क्या मुराद है? Restoration of this principle of creation. तो खुदा का इंसान को जो बनाने का बुनियादी असूल था वो था रूहानियत, और इसके बाद खुदा और इंसान में रूहानियत का रिश्ता दोबारा बहाल हो गया। But how can we do this? ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ? There is only one way to restore kingdom of God on earth. One way. सिर्फ एक ही जरिया था जिसके जरिए खुदा की बादशाही को जमीन पर बहाल किया गया। When Apostle Paul, he realized this, wherever he went, he preached about kingdom of God. और जब पौलुस ने ये चीजें देखी तो उसने अमाल की किताब 19:8 में हमें बताया, And he preached everything about Jesus Christ. और उसने खुदा यीशु मसीह में के बारे में हर चीज को बयान किया। Because kingdom of God can be restored only through Jesus Christ. और उसने कहा कि खुदा की बादशाही सिर्फ यीशु के जरिए ही जमीन पर बहाल होगी। Through something else, kingdom of God cannot be restored. किसी दूसरे के जरिए खुदा की बादशाही जमीन पर नहीं आ सकती। Oh, really? Look at these Catholic countries. They focus on social work, but still so many problems. So many. आप कैथोलिक लोगों की तरफ देखें कि वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। I came from, we have a Orthodox Christianity, Orthodox. मैं भी एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, They have a candle, pray to angels. और मैं मोमबत्तियां जलाता और फरिश्तों से दुआ करता, Jesus is baby, Mary is big. और मैं यीशु को एक बच्चे की मानंद और माँ मरियम को एक बड़ी औरत बनाता। They don't focus on Christ. मैं यीशु पर तवज्जो नहीं देता था, That's why kingdom of God doesn't come. इसलिए खुदा की बादशाही जमीन पर नहीं आती थी। So you really understand why we emphasize Christ. तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि जमीन पर यीशु कैसे आया। If you emphasize something else, kingdom of God will not come. अगर आप इस बात पर जोर नहीं देंगे तो जमीन पर खुदा की बादशाहत नहीं आएगी। That's why I told you, healing, prosperity, social work, it's not gospel. इसलिए मैंने कहा कि खुशहाली और जो दूसरी चीजें हैं वो निजात का जरिया नहीं है। Christ is God's way. यीशु ही वो रास्ता है। Only through Christ, kingdom of God can be restored. on earth. यीशु के जरिए ही सिर्फ खुदा की बादशाही जमीन पर आ सकती है। Oh, this is gospel. यही खुदा की तालीम है। And you may experience, we focus on Christ, everything else restored, healed, blessings come. और आपको शायद इस बात का तजर्बा हो कि जब आप यीशु का नाम लेकर दुआ करते हैं तो फिर आप नजात, तंदुरुस्ती और फतह पाते हैं। I told you, missionary came to Korea, always share Christ. Look, even physical blessings came to Korea. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मिशनरी कोरिया में आए और उन्होंने खुदा यीशु अल मसीह का नाम कोरिया में लिया तो कोरिया में खुशहाली आई। And you need to understand why Christ, why? और फिर आपको जानना चाहिए कि यीशु क्या है। In Genesis 3:9, when Adam and Eve they commit sin, God came to Adam. जब हम पैदाइश की किताब उसकी 3:9 में देखते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा आदम के पास आया। And then God he asked a question, Adam, where are you? और फिर खुदा ने आदमी को पुकारा कि तू कहाँ है। This is an important question. ये बहुत ही जरूरी सवाल है। How do you think? Didn't God know where Adam is? हाँ, क्या आप जानते नहीं है कि खुदा को क्या पता नहीं था कि आदम कहाँ है? He is Almighty God. He knows everything. वो तो कादरे मुतलक खुदा है, वो हर चीज को जानता है। But God wanted point on Adam's problem. लेकिन जो खुदा था वो ये चाहता था कि आदम इस वक्त कहाँ है और उसका मसला क्या है। Adam, where are you? It means Adam, you are not with me anymore. You left me. वो और फिर खुदा ने आदम से कहा कि आदम तू कहाँ चला गया, तू मेरे साथ क्यों राब्ते में नहीं है।
You must know me, have fellowship with me, be inside of me. तू तो- But now you left me. तू तो मुझे जानता था, तू मुझ में था और तेरा मेरा एक तल्लक था। So God, He emphasized true problem. तो खुदा ने सच्चे जो मसला था उस पर जोर दिया। What is the problem of this world? इस दुनिया का जो मसला है वो क्या है? People disconnected from God, doesn't know God. क्योंकि लोग खुदा से जुदा हो चुके हैं। And then God, He gave a solution to Adam. और फिर खुदा ने इंसान को एक मसले का हल दिया। Genesis 3:15. पैदाइश की 3 बाब उसकी 15 आयत में। Offspring of woman will come. Offspring of woman. और फिर औरत की औलाद आई, Destroy Satan. आदमी को यानी शैतान को तबाह करने के लिए। But what is the offspring of woman? औरत की नस्ल से क्या मुराद है? It's someone who is not descendant of Adam. इससे मुराद ये है कि जो आदम से पैदा ना हुआ। All people born because of man's seed, right? आप जानते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो आदम से पैदा हुए। Father gives seed to woman, right? To mama. जो बाप होता है वो औरत को प्रेग्नेंट करता है। But offspring of woman will come without man. लेकिन जो औरत की नस्ल थी वो आदम से नहीं आई। So it was a prophecy about coming Christ. और यही जो यीशु के बारे में पेशगोइयां थी। And then God, He closed Adam and Eve into clothes, like we say. How do we say this? आई अंडरस्टैंड। और फिर खुदा ने औरत और आदमी को कपड़े, चमड़े के कपड़े सी कर दिए। Yeah. So we call this. You see? क्लॉथ, Yeah, but not just closed. चमड़े की लुंगियां Like closed in a. पत्ते। Yes. Anyway, God clothes them. Yes. God clothes them in clothes. So what does it mean clothes? To take clothes, you need kill animal, and his blood will be shed. फिर खुदा ने इंसान को कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी करने का कहा ताकि वो उसका खून बहाएं। So these days we take plants and we make clothes. Back days, to have a clothes, you have to kill animal, right? To have his और skin. इन दिनों में तो हम ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो जमाना इब्तिदा में लोग जानवरों को मारते और उनके चमड़े से कपड़े सीते थे। So God, He mentioned, this offspring of woman will come. He will be sacrificed for your sin. He will shed his blood. तो फिर खुदा ने आदम की नस्ल के लिए ठहराया कि वो जमीन पर आएगी और अपना खून बहाएगी। So we call this gospel. तो हम इसे खुदा का कलाम कहते हैं। Coming Messiah. यानी मसीह आया। And messianic deeds. What will He do? और फिर उसने क्या किया? God will send Messiah. खुदा ने यीशु मसीह को भेजा। And Messiah, to solve Genesis chapter 3 problem, He will sacrifice, He will die on the cross. और उसने अपने आप को कुर्बान किया, सलीब पर जान दी और नजात के काम को मुकम्मल किया। So how God solves Genesis chapter 3 problem? Through Christ. तो खुदा ने जो पैदाइश की किताब का मसला था वो यीशु मसीह के जरिए हल कर दिया। Be good, go to church, serve, it's not gospel. अच्छा होना, चर्च में जाना, ये खुदा की तालीम नहीं। Just do social work, serve in the church, it's not gospel. यानी चर्च की खिदमत करना भी खुदा की यानी बादशाहत नहीं। Christ is gospel. खुदा यीशु ही खुदा का कलाम। Just restore correct understanding about Christ. अपने आप को बहाल करने के लिए यीशु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। And then kingdom of God will be restored in your life. और फिर आपकी जिंदगी में खुदा की बादशाहत बहाल हो जाएगी। And all blessings will be restored. और तमाम बरकत आएंगी। Because this is the gospel. यही खुदा का कलाम है। So I wish we may go deeper to gospel message. Always and always. मेरी ये खुदा से ख्वाहिश है कि आप खुदा के कलाम को गहराई से सीख सके। Then your life will be transformed. ताकि आपकी जो जिंदगी है वो तब्दील हो सके। And God will give you many testimonies. और खुदा आपको बहुत सी नबूवत दे। To that extent you can tell about gospel to the whole world. आप पूरी दुनिया को खुदा का कलाम सिखा सके। Jesus said, "You will be my witness till the end of the earth." यीशु ने कहा कि तुम जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो। I believe this small place will be beginning of missions to Pakistan people. मैं ये चाहता हूँ कि ये छोटी सी जगह जहाँ पर हम खुदा का कलाम सीख रहे हैं, एक दिन आप पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में खुदा का कलाम फैलाएं। And also, if you want to have a successful life of faith, always go deeper to the training to understand mystery of Christ. और मैं अगर आप खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से जानते हैं तो एक दिन आप खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में फैलाएंगे। Apostle Paul, he understood mystery of Christ.
God used his life till the very end. पालूस खुदा के कलाम को नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने उसे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। I wish you can also enjoy this हाँ, blessing. मैं भी यही ख्वाहिश करता हूँ कि खुदा आपके साथ ऐसे करे। Let's pray. आए दुआ करें। Dear God, thank you for this time. खुदा मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। Thank you for the gospel of Jesus Christ. खुदा आपके इस कलाम के लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। Help us restore kingdom of God on earth. हमारी मदद कीजिए कि हम जमीन पर आपकी बादशाहत को बहाल कर सकें, And use our life. और हमारी जिंदगी को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कीजिए, We can share this gospel of the kingdom of God to whole world. ताकि हम पूरी दुनिया में खुदा की बादशाही की मनियादी कर सकें, And bless all our Pakistan department. और हमारे पाकिस्तान को बरकत दे। In the name of Jesus Christ we यीशु pray. के नाम में मांगता और पाता हूँ, आमीन। Amen. Let's finish with the Lord's Prayer. है हमारे हमारे बाप बाप जो आसमान पर है, आपका नाम